Okay. So let us move to the next module, that is feedback module. So feedback module is basically used for taking the feedback from the students. Okay. Today we will discuss how to start with the feedback module, what are the prerequisites, and then we will move ahead with the next one. We have one user manual also for the feedback module. Feedback, yes. This is one user manual for feedback module. How to start with the feedback module. So very first step that you all know, for every module, you have to start with the setting AY and same for this module. Just a minute. सर तुम्ही दर्शना मॅमला कॉल करता का प्लीज, मीटिंग चालू आहे. Oh, yes, sir. नाही सर, एक लटपटे सरांचा फोन, त्यांना सांगत होतो. Yes. The second thing that we have to set the prerequisite master tables in this feedback module. One is the feedback category type. The second is the feedback category. In the SOP itself, what exactly is expected over there, that is mentioned here. We will see it. So to start with, the very first thing, you have to go to feedback masters. The master table links are available in this left side menu itself. You don't have to go to master table and search for feedback masters. So all links are added here directly, or there is a link feedback master. You can go to this link also. So there are two master. One is a feedback type. So when you click on this feedback type, we have to set the feedback type as course specific and non-course specific. These are hard coded values. You have to enter these values as it is, course specific and non-course specific. But you can change the display name whatever you want. You can change it like subject wise, or for non-course specific, if you want, you can make it common feedback. Likewise, you can activate and deactivate it from here. This is the first master table, and second is platform feedback type. I think it is required for query module only. So you have to enter it query here only. This is not applicable to our feedback module. For feedback module, only one master is there, that is feedback type, course specific, non-course specific. All links are added over here also. So first one is feedback category type that we will discuss. After filling that particular master, we will start with this feedback category type. So what are the different feedback category types are there, that we will see. So here you will see the type of feedback. One is course specific, means the feedback will be subject wise, or it will be non-course specific, means a common feedback is there. So when you select the course specific, whatever the feedback category type that you have to add, you have to type the name of that particular over here, and you have to click on save. Already the two feedbacks we have added here, that you can see. For course specific, we have these two types available: student feedback, second is exit. Okay, and these are hard coded. So exit, you have to type it as it is. And these two category types, student feedback and exit, you have to link with the course specific only. You can make them active or inactive from this toggle button also, or you can edit or delete also. Then for non-course specific, the common feedbacks can be taken, like student satisfaction survey, which is required for NAAC, or the faculty survey also possible from this module, faculty satisfaction survey for the NAAC. So both are not subject specific, subject wise nahi hai. So we have to select them as non-course specific. You have to select non-course specific, type this name student satisfaction survey over here, click on save, so it will get added over here. Okay.
Then once we finish with adding the feedback category types that we just discussed, you can see here all kind of feedback categories are available, okay, that we have added. Now next is feedback category. So under the student feedback, again we can take the different kind of feedbacks like theory feedback, practical feedback, or tutorial feedback, that we can take under the student feedback. Most common feedback categories under the student feedback are the theory feedback, that you can add it over here. So this is theory feedback, and for category display number, it will be, say I want to display it as A, first one, to save it. Next, practical feedback. And display number for that, this is serial number, which will appear in the student login. You will see it how it works. See. And the next one is tutorial feedback. We can go like this also, or some other colleges may have a different way of taking the feedback, but very common is this one that we are defining here. Under the student feedback, tutorial feedback is also added. You can add it and say it is C. Save it. Again, we can make them active or inactive from here, or we can edit the name also, but the category types will remain same: student feedback, theory, practical, and tutorial. Okay, is it clear? Similarly, for non-course specific also, you can add the feedback categories. In the same way, you can select the exit. Now under exit, we have only one feedback, that is course exit survey. Course exit survey. It is kept separate purposefully because theory feedback, practical feedback, tutorial feedback, these feedbacks can be taken multiple times in one semester. You can take theory, practical और tutorial feedback, that is student feedback. ये जो feedback है, we can take that feedback multiple times in a semester. हम एक बार ले सकते हैं या फिर 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, depends on the college policy. Suppose the institute wants the first feedback after the completion of 2 unit syllabus, तो 2 unit के बाद में वो first feedback activate करेंगे. They will take the first feedback, theory, practical and tutorial. Again syllabus खत्म होने के बाद में वो second feedback ले सकते हैं. So we can take this multiple times. But exit feedback, course exit survey, इसमें क्या होता है? The student have to give the feedback after the completion of the course only. Course means subject here. Course का meaning यहाँ पे subject है. तो वो subject का syllabus जब खत्म होता है, तब उसके course outcome के बारे में एक feedback student से लेना पड़ता है. Required for the NAC as well as NBA. उसे कहते हैं course exit survey. तो इस सर्वे में बेसिकली क्या होता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो भी आउटकम्स है उसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, whether those outcomes have been fulfilled or not, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं. तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये क्वेश्चंस अलग रह सकते हैं और ये एक बार ही होता है सेमेस्टर के एंड में, इसीलिए इसको एग्जिट फीडबैक बोला जाता है, एंड दैट इज कोर्स एग्जिट सर्वे. ओके, similarly under the student satisfaction survey also, again you can add the feedback. This is category type. Again under the student satisfaction survey we can add more feedbacks like NAC feedback, or we can add canteen feedback. ऐसे फीडबैक जो हर एक स्टूडेंट से आपको लेने हैं, बट साल में एक बार ही लेना है आपको. यू कैन टेक दैट फीडबैक ओनली वंस इन वन एकेडमिक ईयर. सो ऐसे जो भी फीडबैक है जो आपको स्टूडेंट से लेने, जो कि कॉमन है, दैट यू कैन ऐड इन दिस कैटेगरी टाइप स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे. इसके अंदर आप नैक फीडबैक ले सकते हैं, कैंटीन फीडबैक ले सकते हैं, अलग अलग फीडबैक जो सिर्फ एक बार लिया जाता है साल में, इंफ्रास्ट्रक्चर फीडबैक, such kind of feedbacks can be added over here. Okay, so this is the next step. Once feedback categories are added,
you have to offer these categories to the particular year. हर एक साल में आपको जो जो फीडबैक लेने हैं वो सभी फीडबैक आपको ऑफर करने हैं for every academic year. Okay, so the process start with this, like academic year. For this academic year, which feedbacks you want to take? So मुझे स्टूडेंट फीडबैक में चाहिए थियरी फीडबैक, तो उसका वेटेज क्या होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है. से 50 मार्क का वेटेज है मेरा, एंड आई विल ऑफर इट. सिमिलरली यू कैन ऑफर प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल, कोर्स एग्जिट सर्वे, ये सब फीडबैक आप ऑफर कर सकते हैं, और इसका जो भी वेटेज है दैट यू कैन ऐड. ठीक है, this is next step. Once the feedback categories are offered, the next step is adding the questionnaires. So questionnaire के लिए यहाँ पे link है to go to questionnaire. Question types, whether MCQ or subjective, that needs to be displayed over here. तो इसके बाजू में यही पे है देखो, add feedback question type. तो पहला तो क्वेश्चन टाइप मेरा MCQ होगा, so I will add MCQ. एंड सेकंड मेरा टाइप हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें स्टूडेंट कुछ कमेंट्स वगैरह टाइप कर सकता है. ऐसा भी अगर क्वेश्चन आपको रखना है फीडबैक में तो दैट विल बी सब्जेक्टिव. सो दोनों कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी क्वेश्चन टाइप. सो मुझे एमसीक्यू ऐड करने हैं, सो एमसीक्यू सिलेक्ट करता हूँ, पेज पे क्लिक करेंगे. जैसे हम पेज पे क्लिक करेंगे, जितनी फीडबैक कैटेगरीज आपने इस साल ऑफर की है उतनी सब आपको यहाँ पे दिखेगी. ओके, मैंने एक ऑफर किया है अभी, so I will see only one. If I offer one more category, offer feedback category, if I offer one more, that is practical feedback, so it is also for 50 marks and I will offer it. So if I click on this fetch button, you can see there is theory and practical feedback, दोनों ऐड हो गए. Then यहाँ पे जो ये डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन का काउंट आने वाला है. अभी तो कोई क्वेश्चन ऐड नहीं है, there are no questions added, so no count is there. We also have a facility to view the previous year feedback questions. अगर ये मॉड्यूल ऑलरेडी यूज में है और मुझे लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ. मुझे कॉपी करने हैं प्रीवियस क्वेश्चन, दैट आई कैन डू इट. ऐड सब्जेक्ट वाइज न्यू क्वेश्चन एंड ऐड न्यू क्वेश्चन, ऐसे दो बटन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. ऐड न्यू क्वेश्चन जो है ये बटन सभी फीडबैक के लिए जो क्वेश्चन आप ऐड करोगे, वेदर इट इज स्टूडेंट फीडबैक, सेटिस्फैक्शन सर्वे एंड फैकल्टी सेटिस्फैक्शन सर्वे, इन तीनों के लिए यूज होगा. और एग्जिट फीडबैक में जो कोर्स एग्जिट सर्वे रहने वाला है, उस कोर्स एग्जिट सर्वे के क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रहेंगे, बिकॉज दोज डिपेंड्स ऑन द कोर्स आउटकम ऑफ दैट सब्जेक्ट. तो ऐसे क्वेश्चंस ऐड करने के लिए सेकंड जो बटन दिया है, सब्जेक्ट वाइज न्यू क्वेश्चन, ये बटन यूज होगा. एंड दिस बटन इज अवेलेबल और दिस लिंक इज अवेलेबल इन एवरी फैकल्टीज लॉगिन. हर एक फैकल्टी के लॉगिन में फीडबैक के अंदर फैकल्टी है, और फैकल्टी में एक एक्स्ट्रा लिंक हमने दिया है. आई विल जस्ट शो दैट लिंक आल्सो. आवाज येतोय ना माझा? यस सर. ओके, सो फीडबैक में फैकल्टी है, मला रोल नाही वाटत इकडे. फैकल्टी, यस. ऐड सब्जेक्ट वाइज फीडबैक क्वेश्चंस, कोर्स एग्जिट सर्वे, तो सेम बटन हर एक फैकल्टी के लॉगिन में अवेलेबल होगा. एमसीक्यू हर एक फैकल्टी के लिए देखो, यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन ऐसा बटन अवेलेबल है. यहाँ से फैकल्टी, हर एक फैकल्टी क्या कर सकता है, जैसे इस बटन पे जाएगा तो फैकल्टी कैन ऐड द कोर्स एग्जिट सर्वे क्वेश्चंस. यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी दिखेगी फैकल्टी को, एग्जिट कोर्स एग्जिट सर्वे, इतना ही दिखने वाला है. एंड फॉर दिस कैटेगरी एकेडमिक ईयर वो चेंज कर सकते हैं. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी लोड टाइप दे कैन सिलेक्ट वेदर दैट सब्जेक्ट इज थियरी और प्रैक्टिकल लाइकवाइज. और यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, वेटेज वगैरह दे सकते हैं. और ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के लिए है ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्ट कोर्स में ड्रॉप डाउन में आपको वो कोर्सेज दिखेंगे. ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन दी एकेडमिक ईयर सिलेक्शन. एकेडमिक ईयर के लिए जो भी सब्जेक्ट को आप कोर्स ओनर है वो सब्जेक्ट
यहाँ पे आपको दिख जाएंगे. सो फॉर दैट सब्जेक्ट यू कैन ऐड द क्वेश्चंस. तो ये था आपका कोर्स एग्जिट सर्वे का क्वेश्चंस. ओके, देन ये जो बटन है ऐड न्यू क्वेश्चन, दिस इज फॉर एडिंग द न्यू क्वेश्चंस which are related to your theory, practical feedback or NAC feedback or any kind of feedback apart from the exit, except the exit feedback. इसके लिए ये बटन है add new question. तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है आपको, किस एकेडमिक ईयर में आप क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, स्टूडेंट फीडबैक में ऐड करना है या फिर सेटिस्फेक्शन में ऐड करना है या फिर फैकल्टी सेटिस्फेक्शन में ऐड करना है, दैट यू हैव टू सिलेक्ट. फिर थियरी फीडबैक के लिए ऐड कर रहे हो या फिर प्रैक्टिकल के लिए ऐड कर रहे हो, दैट यू हैव टू सिलेक्ट. फिर थियरी फीडबैक को जब भी आप क्वेश्चन ऐड करोगे, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू मस्ट क्लिक ऑन दिस थियरी बटन और थियरी चेक बॉक्स, क्योंकि थियरी फीडबैक थियरी को ही लिंक करना है, प्रैक्टिकल का फीडबैक हमें लैब को ही लिंक करना है, ट्यूटोरियल का फीडबैक हमें ट्यूटोरियल को ही लिंक करना है. सो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, थियरी फीडबैक हम थियरी को लिंक करेंगे, प्रैक्टिकल फीडबैक प्रैक्टिकल को लिंक करेंगे, ट्यूटोरियल का ट्यूटोरियल को लिंक करेंगे. ये थोड़ा इजीएस्ट वे है फीडबैक लेने का. बट अगेन देयर इज अ ट्विस्ट, कोई कॉलेज में ऐसा हो सकता है दे डोंट वांट डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट कैटेगरीज, वो थियरी का अलग प्रैक्टिकल का अलग ऐसा नहीं चाहते. वो सिर्फ बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ दिखना चाहिए कोर्स फीडबैक बाय द स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल दे वांट कोर्स फीडबैक बाय द स्टूडेंट, और इसी कैटेगरी में थियरी लैब ट्यूटोरियल सबका आना चाहिए. तो आपको उस वक्त क्या करना पड़ेगा, ये सबको टिक करना पड़ेगा एट अ टाइम. मींस द सेम कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल टू थियरी आल्सो, लैब आल्सो एंड ट्यूटोरियल आल्सो. तो थियरी सब्जेक्ट के लिए भी वही क्वेश्चंस दिखेंगे, लैब के लिए भी यही क्वेश्चन दिखेंगे जो आप पहले वाले कैटेगरी में ऐड करोगे, जो यहाँ पे डिस्प्ले है, और ट्यूटोरियल के लिए भी वही क्वेश्चन दिखेंगे जो आपने इस कैटेगरी में, जो आपको दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, उसमें ऐड किया आपने. ओके, या फिर सेपरेट सेपरेट है तो सिंपली थियरी, थियरी के वक्त आप यहाँ पे थियरी को टिक करो, प्रैक्टिकल के वक्त आप यहाँ पे लैब को टिक करो, ये भी पॉसिबल है. ठीक है. सम कॉलेजेस में आस्क यू फॉर द सेपरेट रिपोर्ट्स, कि हमें रिपोर्ट सेपरेट चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल फीडबैक अलग चाहिए मुझे, थियरी का अलग चाहिए, ट्यूटोरियल का अलग चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल फीडबैक कंसीडर नहीं करते हैं फैकल्टी का, वो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं होते हमारे यहाँ पे. सो वी डोंट वांट टू कंसीडर प्रैक्टिकल फीडबैक, उसको स्किप करना है हमें. सो इन दैट केस ये यूजफुल होगा. आप थियरी का फॉर्म अलग बनाओ, प्रैक्टिकल का फॉर्म अलग बनाओ. बेसिकली ये फॉर्म्स है, फीडबैक कैटेगरी जो दिख रही है, स्टूडेंट लॉगिन में अलग अलग फॉर्म दिखेंगे फीडबैक के लिए. अगर एक ही आप यहाँ पे रखते हो और उसी एक फॉर्म को तीनों लोड टाइप लिंक करते हो, तो लोड टाइप के अकॉर्डिंग टू फीडबैक स्टूडेंट के लॉगिन में दिखेगा. बट यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि हमें रिपोर्ट सेपरेशन नहीं मिलेगा, फिर प्रैक्टिकल का सेपरेट, थियरी का सेपरेट ऐसा नहीं मिलेगा, वो कॉमन ही आएगा. So that's why I will suggest to go this way. Okay. Then while adding question, I think now this is clear. You have to select the category, then load type, then question number. Say first question, क्वेश्चन का जो भी स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे टाइप करना है, और उसका वेटेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम वेटेज. फिर पहला ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, चौथा ऑप्शन क्या है, और चारों क्वेश्चन का वेटेज आपको यहाँ पे देना है, एंड आपको यहाँ पे ऐड और सेव करना है. ठीक है. हाँ, अगर ऐसा है कि इस थियरी फीडबैक के लिए हर एक प्रोग्राम के लिए उनके क्वेश्चन अलग अलग है, तो आपको यहाँ से प्रोग्राम भी ऑल के जगह पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर. फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐड करो, फिर खत्म होने के बाद सिविल के ऐड करो, देन अगेन मैकेनिकल के ऐड करो. दैट यू हैव टू डू इट हियर. यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes. So we will just see the questions which are already added in one of the institute. सर इसका ये भी लॉजिक है ना, क्वेश्चनर का अगर थ्योरी का और सब्जेक्ट का, सॉरी थ्योरी और प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट कोड अलग होगा, हाँ, उस टाइम पे हम अलग अलग क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं. हाँ, यस. अगर थियरी का कोड अलग है और प्रैक्टिकल का कोड अलग है ना, तो हम दो फॉर्म से मैनेज करेंगे, थियरी फीडबैक, प्रैक्टिकल फीडबैक. और लोड टाइप भी उसका अकॉर्डिंगली रहेगा. आई विल जस्ट शो वन मोर केस आल्सो.
इस कॉलेज में माउली में जो यूज होता है वहाँ पे वो थ्योरी प्रैक्टिकल ऐसा अलग यूज नहीं करते। उनका जो फीडबैक का फॉर्म का नाम है ना वो थोड़ा अलग है, दैट वी विल सी। ऑफर कोर्स स्पेसिफिक में जो स्टूडेंट फीडबैक है, स्टूडेंट फीडबैक में वो ये फीडबैक लेते हैं, देखो दो फीडबैक लेते हैं, स्टूडेंट फीडबैक ऑन करिकुलम, स्टूडेंट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर। ऐसे दो टाइप है, दो फॉर्म है उनके पास, वो थियरी प्रैक्टिकल नहीं बोलते, पर इसमें उन्होंने क्वेश्चन ऐड किए। एंड सेम फॉर्म दे डिस्प्ले फॉर थियरी ऑल्सो, फॉर लैब ऑल्सो एंड फॉर ट्यूटोरियल ऑल्सो। हर एक लोड टाइप के लिए यही फॉर्म वो दिखाई दे शो करते हैं। उनके साइड में जो क्वेश्चनरीज ऐड की जाएगी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी, दैट वी विल सी। देन फॉर दिस कॉलेज दैट वी वर डिस्कसिंग, हाँ यहाँ पे अलग यूज होता है, थियरी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में अलग है। क्वेश्चन सेम है तीनों में, जो थियरी के क्वेश्चन है वही प्रैक्टिकल में है वही ट्यूटोरियल में, बट दे हैव सेपरेटेड द फॉर्म्स बिकॉज दे वांट द सेपरेट रिपोर्ट्स। ओके, सो दैट इज व्हाई दे हैव एडेड दो सेम क्वेश्चंस अगेन, यहाँ पे भी ऐड किए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो विल जस्ट सी द क्वेश्चंस नाउ। जैसे मैं इस काउंट पे क्लिक करूंगा, I am able to view the questions that have been added under this category or this form, theory feedback. तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, रेगुलर एंड पंक्चुअल इन कंडक्टिंग द क्लास, उसका वेटेज क्या है, लोड टाइप कौन सा असाइन किया है उसको, एंड वेदर दैट क्वेश्चन इज एक्टिव और इनएक्टिव। फिर उसमें कितने क्वेश्चन स्टूडेंट को दिखने, ऑप्शन दिखने चाहिए, और उस ऑप्शन का वेटेज। अगर मेरा मैक्सिमम वेटेज 5 है, then one of the option should be having the maximum weightage. Okay, then remaining options can have the weightage less than the maximum, 5 4 3 2 1 0 accordingly। या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो, 5 ऑप्शन है तो वेटेज 4 रहेगा, जो मैक्सिमम है फर्स्ट जो है ऑलमोस्ट ऑलवेज उसको वेटेज 4 3 2 1 0 ऐसा भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज, आप कॉलेज को पूछ सकते हो, you can ask the coordinator and they will give you the weightage also. So I will just show the window where we can add the question. जैसे हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ पे, we have to select theory feedback, then load type as a theory, प्रोग्राम हमें सिलेक्ट करना है। एक तो अगर हर एक ब्रांच के लिए सेम क्वेश्चन है तो आप ऑल सिलेक्ट करो, अगर नहीं है तो आपको ब्रांच वाइज ऐड करने पड़ेंगे। मतलब थियरी फीडबैक में ही अगर क्वेश्चन अलग अलग है हर एक प्रोग्राम के तो आपको उतने क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट और वेटेज यहाँ पे आएगा, दैट यू कैन सी हियर। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है रेगुलर एंड पंक्चुअल इन कंडक्टिंग द क्लास, तो उसको मैंने लिंक किया है लोड टाइप थियरी के साथ में, उसका वेटेज है 5। फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट को दिखने वाला है ऑलमोस्ट ऑलवेज और वेटेज है 5। ऑप्शन 2 ऑफन, वेटेज है 4। अकॉर्डिंगली यू कैन गो इट। जब हम एडिट करेंगे क्वेश्चन तो यहाँ पे एक इज एक्टिव का भी फ्लैग है, समझो गलती से 11 क्वेश्चन ऐड हो गए एंड फीडबैक भी हो गया आपका पहला, और बाद में आपको पता चला कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया है, so you cannot delete that question because already the feedback is taken for that question. But what you can do is for the next feedback you can deactivate that question. Simply edit में जाइए, क्वेश्चन के सामने जो एडिट बटन है यहाँ पे जाइए, देन इसको इज एक्टिव को आप क्या करो, सिर्फ टिक अनचेक करो एंड सेव करो, सो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दी क्वेश्चंस आर एडेड एंड क्वेश्चंस विल डिस्प्ले। अगर क्वेश्चंस का आपको एक्सेल डाउनलोड करना है, एक्सेल बटन अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, दैट यू कैन डू। देन हाइड एंड शो, इसका क्या यूज है एग्जैक्टली ये मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कोई कॉलेज में ये सभी फॉर्म्स एक्टिवेटेड रहते हैं अभी, बट वो क्या चाहते हैं कि हाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है ना उनको थियरी फीडबैक दिखना चाहिए और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल फीडबैक दिखना चाहिए, और हम दोनों फीडबैक साइमल्टेनियस ले रहे, एट अ टाइम ले रहे। तो उस केस में क्या होता है, दोनों स्टूडेंट्स को, फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर को भी, तो दोनों स्टूडेंट को दोनों फॉर्म्स के क्वेश्चंस दिखते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वो मैनेज करना है तो यहाँ पे हाइड एंड शो बटन है। ठीक है, सो अगर मैंने एक बटन को हाइड कर दिया
यहाँ से हाइड पे क्लिक किया तो इसके क्वेश्चंस पूरे के पूरे क्वेश्चन स्टूडेंट साइड हिडन हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अगर मुझे फिर से शो करना है, आई हैव टू क्लिक ऑन दिस शो बटन। ओके, हे समजले का? येस. Yes. ठीक है, सो दिस इज प्रोसेस ऑफ ऍडिंग दी क्वेश्चन्स. या इथपर्यंत काही डाऊट असेल तर विचारा, देन वी विल मूव अहेड. नो क्वेश्चन्स? ओके, येस, हा बोल तुला. सर मला एक डाऊट आहे एस पोर्टलमध्ये. स्टुडंटनी जर असाइनमेंट कॉपी केले आणि अपलोड केले तर त्याच्यावर काय प्रोव्हिजन आहे सर? असाइनमेंट कॉपी केली आणि अपलोड केली तर? हा, दुसऱ्या मुलाचे. आता याच्यामध्ये असाइनमेंट जर टाईप केलेली असेल, म्हणजे स्कॅन कॉपी नसेल, हँड रिटन स्कॅन कॉपी नसेल, तर आपल्याकडे प्लॅगॅरिझम आहे. तर त्या असाइनमेंट पोर्टलमध्ये एक कॉलम आहे प्लॅगॅरिझमचा. तो तिथं ते फर्स्ट स्टुडंटने जी असाइनमेंट अपलोड केलेली आहे त्याला प्लॅगॅरिझम 0 असेल. मग त्याची जर कुणी कॉपी केली असेल किंवा त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये जेव्हा सेकंड असाइनमेंट अपलोड होईल, ह्या दोन्ही कम्पेअर होतील आणि त्याच्यामध्ये सिमिलरिटी फाइंड होते आणि प्लॅगॅरिझम चेक होतो, त्याचा तिथे रिमार्क दिसतो. असं थर्ड फोर्थ स्टुडंटला होत जातं पुढे पुढे. ओके. पण हे डिपेंड कशावर करतं? पहिल्या स्टुडंटने जी असाइनमेंट अपलोड केली आहे त्याच्यावरती. ठीक आहे. ओके. येस. Yes, if do not have any questions while understanding the process of feedback questions, then we can move ahead. Yes, इस कॉलेज में आप देख सकते हैं इनके फीडबैक ऑन करिकुलम के क्वेश्चंस सेटिस्फेक्शन सर्वे में अलग है, तो थोड़े से क्वेश्चंस अलग है उनके. यू कैन जस्ट सी इट. परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर के क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पे देखिए, रेगुलर एंड पंक्चुअलिटी ऑफ द टीचर, वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस कॉलेज में शो किया था, सील में शो किया था, सेम क्वेश्चन है, बट उनका जो फॉर्म का नाम है ना वो अलग है. वो क्या कहते हैं इसको? स्टूडेंट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर. और ये जो क्वेश्चन है, इन्होंने देखो आप थियरी को भी ऐड किया है, लैब को भी ऐड किया है. इट मीन्स व्हाट? तो थियरी के लिए भी ये सेम फॉर्म दिखता है स्टूडेंट को, और प्रैक्टिकल के लिए भी यही फॉर्म दिखता है स्टूडेंट को. ठीक है, इसमें डिफिकल्टी ये है दैट वी हैव फेस्ड, आई थिंक प्रियंका हैव फेस्ड, उनको रिपोर्ट अलग चाहिए, मतलब थियरी का अलग चाहिए, प्रैक्टिकल का अलग चाहिए, बट फॉर्म एक ही बनाया है उन्होंने. सो दैट इज अ डिफिकल्टी. Okay, so shall I move ahead for next step now? How to activate and deactivate feedback and all those things. If you do not have questions. Okay, so let us move ahead with the questions. Sorry, setting the feedbacks for the particular academic year. Feedback start कैसे करना है हर एक सेमिस्टर में? feedback हम start कैसे कर सकते हैं, that we will discuss. So to start the feedback in any institute, what are the steps that we have to follow? सबसे पहले तो आपके उस एकेडमिक ईयर में कैटेगरीज ऑफर करनी है आपको. क्वेश्चंस आपके रेडी होने चाहिए. क्वेश्चंस ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, आपको कॉपी करने हैं, तो यू कैन यूज दैट कॉपी बटन, कॉपी फीडबैक क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, दैट यू कैन डू. और जितनी कैटेगरीज आपने ऑफर की है उतने कैटेगरीज के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे. ठीक है, ये होने के बाद में जैसे हमें फीडबैक स्टार्ट करना है, वेरी फर्स्ट थिंग इज टू सेट दी फीडबैक वर्जन. तो जो भी इंस्टीट्यूट फीडबैक कोऑर्डिनेटर है उसको स्टूडेंट का फीडबैक वर्जन सेट करना होता है. सो मास्टर्स में ये लिंक है स्टूडेंट एफबी वर्जन, और इट कैन बी एनीवेयर, ऐड एडिट स्टूडेंट फीडबैक वर्जन, कुछ भी नाम हो सकता है. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक. तो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा. किस एकेडमिक ईयर के लिए आप फीडबैक ओपन कर रहे हो, किस सेमेस्टर के लिए कर रहे हो,
फिर ये फर्स्ट फीडबैक है, सेकंड, थर्ड, कौन सा फीडबैक है, नंबर आपको सिलेक्ट करना है, वर्जन। फिर उस सेमेस्टर का अगर पहला फीडबैक है तो आप 1 लीजिए, पहला हो चुका है और दूसरा फीडबैक है तो आप 2 लीजिए, ठीक है। इज एक्टिव में आपको यस करना है। फिर स्टार्ट डेट क्या होगा, मतलब स्टूडेंट फीडबैक कब एक्सेस करेंगे उसका स्टार्ट डेट लीजिए। टाइमिंग क्या होगा स्टार्टिंग का, एंड डेट क्या होना चाहिए, कब तक ऑन रहना चाहिए स्टूडेंट लॉगिन में, उसका टाइमिंग क्या होगा। देन इज सीक्रेट कोड अप्लीकेबल, यस और नो सिलेक्ट कीजिए। एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे, आर यू सेटिंग दिस वर्जन फॉर कोर्स एग्जिट सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम मोस्टली पढ़ते ही नहीं है, बट ये फैकल्टीज को रीड करना है एंड दे हैव टू सिलेक्ट यस और नो। ये क्या है बेसिकली, हमने जो फीडबैक कैटेगरीज अभी तक देखी है, लाइक थियरी, प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल, इसमें एक कोर्स एग्जिट सर्वे मैंने बताया आपको, जो एट द एंड ऑफ सेमिस्टर होता है और सिर्फ एक बार होगा एक सेमिस्टर में, ठीक है। इट इज सब्जेक्ट वाइज, बट वो एक बार होने वाला है, वो सेमिस्टर में रिपीट नहीं होगा ना बार बार। और वो कब होगा, आपका पूरा फीडबैक सिलेबस सब खत्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेमिस्टर, तब होने वाला है। सो आपको क्या करना है, while giving the training you should remember that, आपको उनको बताना है कॉलेज को कि फीडबैक 1 समझो आपने लिया है 2 यूनिट खत्म होने के बाद, फीडबैक नंबर 2 आपने लिया है सपोज 4 यूनिट सिलेबस फिनिश होने के बाद में, एंड फीडबैक नंबर 3 आपने लिया है पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद में। बट ये कौन सा फीडबैक बोल रहा हूं मैं, रेगुलर, थियरी, प्रैक्टिकल, ट्यूटोरियल वाला फीडबैक। ये तीनों खत्म होने के बाद में आपको कोर्स एग्जिट सर्वे अगर लेना है तो आपको वर्जन यूज करना पड़ेगा 4, प्लीज रिमेंबर। तो आपको यहाँ पे फीडबैक वर्जन 4 सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे यस करना पड़ेगा। जब आपको कोर्स एग्जिट सर्वे ऑन करना है, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे आपको यस करना है, आर यू सेटिंग दिस वर्जन फॉर कोर्स एग्जिट सर्वे, से यस। मतलब आपका पहला, दूसरा, तीसरा रेगुलर फीडबैक रहेगा और फोर्थ जो है दैट विल बी अ कोर्स एग्जिट सर्वे, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड बटन। ओके, तो जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐसा दिख जाएगा। फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हो, यू कैन एडिट दैट एनी टाइम। हम उसका डेट एक्सटेंड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। फिर इसको डीएक्टिवेट करना है तो एडिट करके इज एक्टिव का जो एस बटन है इसको नो कर सकते हैं, दैट वी कैन डू इट। यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? यस सर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कोर्स एग्जिट सर्वे का वर्जन बहुत केयरफुली सेट करना है आपको। अगर वो कॉलेज सेमिस्टर में 2 बार फीडबैक लेता है तो कोर्स एग्जिट सर्वे आपका आएगा 3rd वर्जन में। अगर 4 फीडबैक लेता है सेमिस्टर में रेगुलर, तो आपका 5वां आना चाहिए कोर्स एग्जिट सर्वे। मतलब बीच में कहीं पे भी मत बोला आप उनको लेने के लिए। पहला फीडबैक हो गया, फिर दूसरा हो गया, अब दूसरा होने के बाद में मेरा सिलेबस खत्म हुआ है, ठीक है, या फिर मेरा सिलेबस खत्म हुआ है, मैंने दूसरा फीडबैक लिया ही नहीं, डायरेक्टली मैंने क्या किया कि कोर्स एग्जिट सर्वे पहले ले लिया, तो कोर्स एग्जिट के लिए फिर मेरा वर्जन 2 आ जाता है। और फिर वो बोलते कि नहीं नहीं हम भूल गए, हमें तीसरा रेगुलर फीडबैक भी हमें दूसरा लेना है, तो उसके लिए फिर हमें 3 नंबर का वर्जन यूज करना पड़ता है। होता कुछ नहीं है, बट रिपोर्ट्स मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट विथ एनेबलिंग द फीडबैक एट द स्टूडेंट एड। सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्जन ऑन करना पड़ेगा। वर्जन ऑन होने के बाद में नेक्स्ट थिंग, हर एक डिपार्टमेंट फीडबैक कोऑर्डिनेटर का जो रोल है उसमें भी ये एड एडिट वर्जन का लिंक है दैट यू कैन सेट। फिर यहाँ पे एक फीडबैक सेटिंग है और रजिस्टर स्टूडेंट फॉर फीडबैक, ये 2 लिंक्स है। फीडबैक सेटिंग में पहले बता देता हूँ। फीडबैक सेटिंग में आप वर्जन्स वगैरह सिलेक्ट करके, जैसे इफ यू फेच इट, आप प्रोग्राम वाइज सिविल फर्स्ट, सिविल सेकंड, सिविल थर्ड, सिविल फाइनल ईयर, यहाँ पे हर एक डिफरेंट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर स्टूडेंट का बटन रहेगा। ये इस पे आप क्लिक करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट है सेकंड सिविल में, वो सभी स्टूडेंट फीडबैक को रजिस्टर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एक ईयर का यहाँ से कर सकते हैं फीडबैक सेटिंग से। और एक लिंक है रजिस्टर स्टूडेंट्स फॉर फीडबैक, दोनों में डिफरेंस क्या है दैट वी विल सी। रजिस्टर स्टूडेंट्स फॉर फीडबैक, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है,
फीडबैक सेटिंग में यहाँ पे बटन दिखता है आपको रजिस्टर का, और ईयर वाइज आप स्टूडेंट को रजिस्टर करा सकते हो। और जो सेकंड लिंक मैंने बताया, रजिस्टर स्टूडेंट फॉर फीडबैक, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली रजिस्टर का बटन दिया है, तो आप जो भी प्रोग्राम टाइप वगैरह जो सिलेक्ट करोगे, से सिविल फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर, यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म का यूज खाली रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं आप, बट फीडबैक सेटिंग से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर मुझे ये करना है कि मैंने जो फीडबैक ऑन किया है वो फिलहाल सेकंड ईयर को ऑन रखना है, थर्ड ईयर को ऑफ करना है, तो यहाँ पे एक्टिव डीएक्टिव का फ्लैग है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को फीडबैक नहीं दिखेगा फिलहाल। फाइनल ईयर का बंद करना है तो आप फाइनल ईयर का यहाँ से ऑफ करा के ले सकते हैं, दैट यू कैन मैनेज। इसलिए फीडबैक सेटिंग का पेज इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हर एक फीडबैक सेटिंग के सामने आपको एडिट बटन भी दिया है। तो इफ यू एडिट, हर एक ईयर के लिए, सिविल सेकंड ईयर के लिए स्टार्ट डेट एंड डेट आप मैनेज कर सकते हो, डिफरेंट रख सकते हो, यू कैन सेट इट डिफरेंट। जैसे हमने देखा कि स्टार्ट में हम जो मास्टर से सेट करते हैं वो तो सबके लिए सेट हो जाता है, बट मुझे प्रोग्राम वाइज अगर चेंज करना है, ईयर वाइज चेंज करना है, दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो फीडबैक सेटिंग से। स्टार्ट डेट एंड डेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, टाइमिंग चेंज कर सकते हो, थ्रेशोल्ड अपडेट कर सकते हो। थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आप सेट करोगे, समझो 70%, तो जिस स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में फीडबैक अटेंडेंस अगर 70 के नीचे है तो उस सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट फीडबैक नहीं दे पाएगा। तो उसका अगर थ्रेशोल्ड सेट करना है तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड इच सीक्रेट कोड रिक्वायर्ड अगेन, तो वो यहाँ से सेट हो जाएगा। So these are the things that we have to remember. And the last step before starting the feedback in the student login is registration। और ये सब होने के बाद में फीडबैक लोड लिंकिंग, ये है। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, हर एक सेमिस्टर में हर एक वर्जन के पहले, यहाँ पे वर्जन तो नहीं दिखता है, बट हर एक वर्जन के पहले आपको सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट की लिस्ट दिखेगी, कौन से सब्जेक्ट्स का आपको फीडबैक लेना है वो आप यहाँ से सेट करो। अब ये अगर सब थ्योरी सब्जेक्ट्स है तो आप थ्योरी के सामने टिक करो। फिर अगर इसी सब्जेक्ट कोड को आपने थियरी का भी लोड टाइप अटैच किया है और प्रैक्टिकल का भी लोड टाइप टेम्पलेट में अटैच किया है, तो थियरी प्रैक्टिकल दोनों का फीडबैक लेने के लिए आपको लैब के सामने भी टिक करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, थियरी का कोड अलग रहता है, प्रैक्टिकल का अलग रहता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको जियो टेक्निकल, ये सिर्फ थियरी का कोड है, प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट कोड उनका अलग है, सेम सब्जेक्ट है बट कोड अलग है। तो यहाँ पे लैब के सामने लोड टाइप है लैब, उसको आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स और जितने भी लोड टाइप के सामने टिक है, उतने ही सब्जेक्ट्स का, उतने ही लोड टाइप का फीडबैक आप स्टूडेंट से ले सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि कोई एक सब्जेक्ट को अभी टीचर ही अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ से फीडबैक को ऑफ कर सकते हैं। आप लिंकिंग ही मत करो, ये हर एक वर्जन के पहले आपको करना है। ठीक है, हाँ, अगर फर्स्ट वर्जन में जो किया है वो कंटिन्यू रखना है तो आप रख सकते हैं, बट सेकेंड वर्जन में कुछ चेंज है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडिशनली यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट ऑल का बटन भी दिया है, सबका एक साथ ऑन ऑफ करना है, दैट इज पॉसिबल, एंड देन यू हैव टू सेव इट। ठीक है, ये आखिरी वाला स्टेप है। स्टूडेंट को लॉगिन करने को जब आप बोलेंगे कि आप लॉगिन करो फीडबैक दो, उसके पहले ही ये लिंकिंग वाला पेज आपको यूज करना है। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब आपका पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लीज रिमेंबर। यहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन भी है, यूज दिस फॉर्म बिफोर फीडबैक कंडक्शन ओनली। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। स्टूडेंट साइड हम कल देख सकते हैं। यस सर, इसमें और एक इम्पोर्टेंट वो सेटिंग करनी पड़ती है। यस, वो व्हिच वन, आई फॉरगॉट इट। सर 2 मिनट। सेट सब्जेक्ट वाइज फीडबैक, यस और नो? हाँ, सेट अगर ये नहीं रहा तो नहीं होता है। करेक्ट। एक्चुअली हर एक कॉलेज में जरूरी नहीं है ये जो सेटिंग है। कुछ कॉलेजेस में ना हमने कस्टमाइज रिपोर्ट्स दिए हैं आईएसओ फॉर्मेट्स में वगैरह, जैसे कि जील में दिए है।
तो वो पर्टिकुलर रिपोर्ट में आपको अगर फीडबैक का रिपोर्ट चाहिए उस फॉर्मेट में, तो यहाँ से वो आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। यू हैव टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट फेच कोर्सेज और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सामने यस नो ये ऑन करना पड़ेगा, तभी वो रिपोर्ट आएगा। ठीक है, बट ये फीडबैक पे अफेक्ट नहीं करेगा, ये रिपोर्ट के लिए अफेक्ट करेगा। Means whether to take a feedback for that course or not? Yes, no. नहीं, आई थिंक सर ये रिपोर्ट के लिए। Okay, okay. यस, आई थिंक झील मध्ये एक ISO फॉर्मॅट करून दिलेला आहे आपल्याला। मी आय थिंक होतो तेव्हाच केलेला आहे। यस, फीडबॅक रिपोर्ट्स मध्ये हे 2 ISO फॉर्मॅट आहेत, त्यांच्या फॉर्मॅट प्रमाणे फीडबॅक रिपोर्ट पाहिजे होता। Yes, yes. तर या रिपोर्ट मध्ये फीडबॅक तेव्हाच येतो जेव्हा आपण मास्टर्स मधून यस नो करतो, तरच येईल रिपोर्ट। हे जर ऑफ असेल ना तर फीडबॅक रिपोर्ट इकडे या फॉर्मॅट्स मध्ये येत नाहीत, ब्लँक येतो डेटा। Okay. येस, ओके। अजून काही क्वेश्चन्स असतील? सर आणि क्लास टीचरने पण सब्जेक्ट ऑन ऑफ? येस येस, ते पण ते एक पण. सांगितलं। हो, आपण हे जस्ट फीडबॅक ऑन कसा करायचा हे बघितलं, बट वी कॅन एनेबल डिसेबल फीडबॅक। आय थिंक ते उद्या कव्हर करूयात का आपण, स्टुडंट साइडचा फीडबॅक घ्यायच्या आधी? उद्या साधारण किती वेळ लागेल सर, समजा या फीडबॅकचं पूर्ण आता मॉड्यूल मध्ये पूर्ण सेशन जाईल यामध्ये? नाही, उद्या होऊन जाईल सर, एक 20 मिनिट मध्ये। फक्त फीडबॅक ऑन ऑफ कसे करायचे, म्हणजे एखाद्या बॅचचा एखाद्या सब्जेक्टचा ऑन ऑफ करायचा असेल तर काय करायचं ते एक दाखवेल। क्लिअर फीडबॅक एक दाखवून देईल उद्या। ओके. क्लिअर फीडबॅक कसे करू शकतो आपण, बल्क मध्ये पण आणि सिंगल पण, आणि स्टुडंट साइड कशी दिसते हे एक एकदा दाखवतो। ओके. येस, हार्डली 15-20 मिनिट इनफ आहेत। रिपोर्ट्स जस्ट एखादा दाखवेल, गो थ्रू करू शकतात सगळे लोक। ओके. येस, रेकॉर्डिंग स्टॉप.